Good morning, guys. Praful here. Welcome back, and thanks for joining in. Today is the 24th of March, the fourth weekly expiry, and the market, after opening a big gap down, which led to an enormous call side premium decay, has again shot up almost 120 points from the open. So that has led to a huge call side spike, premium spike, and even I'm looking at a minor 2.5 point loss. Currently trading with 5,000 quantity, 100 lots है, and I'm looking at a 5,000 pounds, around almost 2.5 3 point loss देख रहा हूँ मैं. So the major loss that I got was because I was sitting on a 17,300 call, and I started the 17,300 call at somewhere around 14 rupees, and I had to cover them up till 26, 26, 27, 28 तक भी कवर किया लगता है. Let's check it. 28 तक मैंने कवर किया, 28, 27.6. तो काफी हाई प्राइसेस पे मैंने कॉल्स को मैंने कवर कर लिया है. एंड इसको मैं 13, 17, 350 कॉल को I'll be leaving it up to 16 rupees. Once it moves to 16, so then again I'll be risking off. मतलब क्या है, इसको फिर से इसको निकाल के 17,350 को निकाल के 17,400 पे लेके जाऊंगा. सो दैट वुड बी द अप्रोच, बिकॉज अभी फिलहाल के लिए आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल ब्रिंगिंग लॉट ऑफ माई पुट्स टू 17,050, बिकॉज जब मार्केट नीचे आएगा ना, ये पुट्स कल जैसे फिर से मतलब क्रैश होना, आई मीन कल जैसे फिर से स्पाइक होना शुरू कर देता है. So currently I'm sitting, all my calls are at 17,350 and puts are spread across 050 and 17,000, but majority puts मेरा 17,000 पे ही है, 17,050 पे भी जस्ट थोड़ा मतलब क्वांटिटीज रहा है. तो currently down by 2 points. तो आज का मतलब मैं थोड़ा प्राइस एक्शन होने दो या प्रीमियम बिहेवियर होने दो, थोड़ा एरेटिक रह सकता है, एंड देयर कैन बी अ लॉट ऑफ स्पाइक्स, बिकॉज दोनों तरफ से मार्केट ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मतलब स्पाइक्स दे सकता है. So because of which I will be a little careful, and I don't want to come too close to the spot unless it's very much required. तो तब तक मैं थोड़ा मेरा डिस्टेंस को बना के रखूंगा मार्केट के साथ. So look at this. Though I'm feeling that I'm super far away from the spot, but if you look at the charts, this is 350. ये लेवल जो है ये 350 है. ये लेवल, this is 350 level. So I don't think it's impossible for the markets to shoot back up. Impossible तो नहीं है, but I'll still be, I'm still expecting these levels. This यहाँ पे जो swing है ये, and it's a confluence of 20 moving average and a 200-day moving average and the confluence of multiple supports of previous day. तो ये होल्ड करने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, बट तब तक अगर स्विंग आ जाता है, तब तक थोड़ा मार्क टू मार्केट लॉसेस दिखना शुरू हो जाता है, देन वी हैव टू एंड्योर इट. बट आई थिंक दिस ऑप्शन 17,350 शुड नॉट स्पाइक मोर देन 16. अगर ये 16 पहुंचता है, देन आई विल बी हैविंग नो अदर ऑप्शन बट टू रिस्क ऑफ 17,350 टू 17,400 कॉल्स. तो उस पॉइंट पे मतलब थोड़ा काफी रिस्क ऑफ पोजिशन हो जाएगा, एंड प्रोबेबली वी विल हैव टू कलेक्ट सम 16-17 points throughout the day, and I'm okay with that. For today, I'm okay with that. Time is 10:38, and what an up move, what a short covering that we saw. Look at these call options. These call options, 17,300 call, which I shorted at 14 rupees in the morning. So यहाँ पे 14-15 पे जो ट्रेड कर रहा था, it made a high of 50 rupees. 50 rupees तक भी चला गया, and then of course, like I had to go into a drawdown. Definitely drawdown पे गया था मैं. Now currently अभी cost to cost चल रहा है. I went into a drawdown of 8 points. तो जब मैं drawdown में गया था, तब क्या किया था मैंने? दो चीजें की. First thing is I tried to stay in the calls as much as possible, but जब भी call set upside breakout होता था, for example, look at this. ये 17,300 का कॉल में दिखाता हूँ. देखो, जब भी ये चीज होता था, जब भी एक मेजर सपोर्ट ब्रीच होता था, आई नो दैट लाइक यहाँ से इमीडिएटली एक स्पाइक मारने वाला है. तो ये ब्रीच होने से पहले मैं थोड़ा पुट्स को ऊपर पुश करता था, एंड देन ये ब्रीच होके आई यूज्ड टू वेट फॉर अ कूल ऑफ, बट यहाँ पे कूल ऑफ नहीं मिला. देन डेफिनेटली आई हैड टू स्क्वायर दीज कॉल्स अप एट द वर्स्ट पॉसिबल पॉइंट्स, एंड बिकॉज ऑफ विच द मार्क टू मार्केट वेंट अप टू -8 points. तो -8 points गया, and I had no other option but to stay there. But after that, this minor pullback, it has resulted in the immense drop of the call prices. तो काफी ज्यादा call prices drop हो गया. If you look at this, the 350 call from almost 30 rupees, it has already lost 50% of its value.
30 से ऑलमोस्ट 15 पे चल रहा है अभी, एंड मार्केट ने कितने पॉइंट्स गिरा है, फ्रॉम 250 टू अभी 220 पे चल रहा है, 30 पॉइंट ये जो गिरा, लुक एट दिस, 30 पॉइंट्स द मार्केट फेल, एंड दीज कॉल्स विच आर लाइक सुपर ओटीएम जिसका डेल्टा रहेगा 0.2, वो 15 पॉइंट्स गिरा, मतलब कितना है, दिस 0.2 डेल्टा का जो कॉल ऑप्शंस है, दे बिहेव्ड एज इफ दे आर एट द मनी ऑप्शंस। एट द मनी ऑप्शन का मतलब क्या है, 0.5 डेल्टा, 0.5 डेल्टा मतलब क्या है, तो अगर मार्केट 10 पॉइंट मूव करेगा तो आपका ऑप्शन 5 पॉइंट मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉल ऑप्शन अगर, सॉरी, मार्केट अगर 50 पॉइंट नीचे आएगा तो आपका कॉल ऑप्शन कितना नीचे आना चाहिए, 25 पॉइंट नीचे आना चाहिए। सो दैट वे दिस ऑप्शन इज डेफिनेटली नॉट एट द मनी, सो इनका डेल्टा 0.5 नहीं रहेगा, बट इवन देन मार्केट 30 पॉइंट्स गिरा है, राइट, सो फ्रॉम 17,250 टू 17,224, तो अराउंड 25 पॉइंट्स गिरा है एंड 30 पॉइंट्स गिरा है, एंड दिस ऑप्शन हैज लॉस्ट 15 पॉइंट्स। लुक एट दिस, 31 से लेके 15 तक, तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% गिरा है। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑप्शंस आर मोर अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। यहाँ पे कितने लोग 17,350 कॉल जो शॉर्ट किए थे, वो लोग डर के यहाँ पे आपका पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किए, बिकॉज ऑफ विच द ऑप्शंस वेंट अप। एंड यहाँ पे इस पोजीशन को देख के जितने लोग मतलब कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं, हाँ भाई यहाँ पे मतलब शॉर्ट कवरिंग होगी और 100 पॉइंट ऊपर जाने का वाला, तो यहाँ पे इनका सबका, यहाँ पे जो एंट्री किए हैं उनका सबका स्टॉप लॉस रहेगा, वो हिट होते ही नीचे आएगा। एंड यहाँ पे जैसे एक स्विंग फॉर्म हो जाएगा ना, जैसे ये स्विंग फॉर्म हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाता है, द पीपल विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट हैज बीन अ वन साइड रन अप, वन डायरेक्शनल मूव आया है, एंड जहां पे एक स्विंग फॉर्म हो जाता है ना, तो वहां पे कॉल राइटर्स विल कम एंड शॉर्ट with the stop loss being just above the day's high. So this offers a very good risk reward for the call writer. So that is why call options को काफी तेजी से शॉर्ट किया जाता है and the call options just crash. So that's what has happened here. And currently mark to market ठीक ठाक, मतलब अभी 1 पॉइंट अप हो गए हम लोग। So from here on, so today is not the day where I'm targeting 3%, 2%, 2.5, 3%, इतना तो टारगेट नहीं करने वाला हूं मैं। So I'll be playing in a very रिस्क अवर्स एंड रिलैक्स्ड वे। तो कहीं पे भी मतलब ये ऑप्शंस का ये हो जाएगा ना, तो एंड सी, लुक एट दिस, लॉजिकली आल्सो इट डजंट मेक सेंस टू टेक एडिशनल रिस्क नाउ, बिकॉज अगर मैं कॉल्स को अभी पुश करूंगा और इमीडिएटली एक ऐसे कैंडल फॉर्म हो जाएगा ना, दिस कॉल्स विल अगेन स्पाइक बैकअप, तो अभी मुझे कॉल रिस्क ऑन करना नहीं चाहिए। एंड एट द सेम टाइम पुट्स को मैं ज्यादा ऊपर पुश करूंगा ना, तो वन स्मॉल 50 पॉइंट कैंडल विल ब्लो अप दीज पुट्स बैकअप। तो दैट इज वाई अभी ये 20 पहुंचेगा तो इसको मैं रिस्क ऑफ करूंगा, और ये अगर 18 पहुंचेगा तो इसको मैं रिस्क ऑफ करूंगा। शायद दैट वुड बी द अप्रोच, एंड नाउ जितना हो सके उतना रिस्क अवर्स ट्रेड करेंगे। तो टारगेट वुड बी लाइक 1% शुड बी डूएबल नाउ। अगर 1% भी नहीं होता है तो ठीक है, वॉट एवर अबव दैट आई विल टेक इट एज अ बोनस। ओके, टाइम इज 1:20 एंड क्विक अपडेट, मार्क टू मार्केट अराउंड 54K 55K के आसपास चल रहा है, सो विच टर्न्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 8 पॉइंट्स। तो आफ्टर दिस कूल ऑफ, तो ये जो अपमूव में कॉल्स इतना ज्यादा स्पाइक नहीं हुए, बट पुट्स ज्यादा डीके दे दिए, बट बिकॉज वी हैड अ ब्रेकआउट, तो मैंने भी पुट्स को ऑलमोस्ट 17,150 तक भी मैंने पुश किया था, समटाइम्स 200 तक भी मैंने पुश किया था, बट उसके बाद देन वंस दिस रिवर्सल केम आई हैड टू टेक स्टॉप लॉसेस ऑन द पुट्स, एंड नाउ अगेन द पुट्स हैव बीन शिफ्टेड बैक टू 17,100 एंड 17,050। तो करेंटली कॉल्स 250 पे मैक्सिमम है, 300 पे आधे है, पुट्स 100 पे थोड़ा है एंड 050 पे थोड़ा है। इफ दिस गेट्स ब्रीच्ड, 190 लेवल से अगर ब्रीच होता है, देन ये सारे 250 कॉल्स को 300 पे फिर से शिफ्ट कर दूंगा। तो अभी क्या है देखो, इवन इफ आई सिट ऑन दीज ऑप्शन 17,300 एंड 17,050 पे भी बैठूंगा ना, आई गेट अराउंड 12 पॉइंट्स। तो 12 पॉइंट्स इज व्हाट, 12 पॉइंट्स इज 1% इन इटसेल्फ। तो मुझे इतना ज्यादा रिस्क लेने की अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी सिटिंग ऑन समवेयर अराउंड क्लोज टू 0.8%। तो अगर ये 12 पॉइंट्स भी आ जाता है तो आई विल बी मेकिंग मोर देन 1.8 1.9%। तो नाउ I'll be trading a little sensibly, खाम का मतलब क्लोज लेके नहीं आने वाला हूँ unless it's absolutely required. All right, time is 2:53. Very what do you call, very unlikely of me to close before averaging, but today is one such day where I'm not comfortable with the kind of premiums that we have on the even the 50 point OTM options, because we were at 17,250 levels and the 17,200 put had gone up till 4 rupees, and similarly the 17,300 call has gone down to 2.5 rupees. So I definitely don't want to get stuck in some sort of a option spikes, gamma spike. Look at this, मैंने पुट ऑप्शन को मैंने एग्जिट किया
few minutes back put option को मैंने exit किया 17200 put option 4.5 rupees पे, and now it's trading at almost 9 rupees, 10 rupees high मार के आ गया, 10 rupees, yes, it made a high of 10 rupees. So I didn't want to take any headache, and that is why मैंने सारे पोजीशंस को मैंने क्लोज करके रखा है, एंड ये थोड़ा मतलब 17500 कॉल से 17400 को मैंने पुश किया है, तो अराउंड 1 लाख, एग्जैक्टली 1 लाख. एंड मैं आज का मेरा टारगेट ही था अराउंड 1%, बट आज का 71 lakhs यूज हुआ है, एंड 71 lakhs के लिए ऑलमोस्ट 1 लाख, दैट इज 1.5%. आई थिंक डिसेंट एनफ. आई डिसाइडेड नॉट टू प्ले टुडे. द एवरेजिंग मतलब छोड़ दो, मतलब एक 3-4 पॉइंट्स तो ऑब्वियसली 3-4 क्या 5-6 पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, बट इट्स ओके. वंस इन अ वाइल लाइक आई एम रेडी टू गिव अप ऑल दीज 4-5-6 पॉइंट्स का जो भी पीछे पीछे आएगा, दैट्स फाइन. तो या आई विल बी कॉलिंग इट अ डे. आई होप यू गाइज ऑल्सो हैड अ गुड एक्सपायरी. इतना ईजी तो नहीं था, बिकॉज स्टार्टिंग जो कॉल साइड शॉर्ट कवरिंग हो गया उसी पॉइंट पे आई वाज डाउन ऑलमोस्ट 1% नहीं 0.8% डाउन था. तो वहां से रिकवर करके देन वी मेकिंग अराउंड 1.5% is not a bad outcome at all. So yeah, I'll see you guys in my next trading video, and I hope you guys have a good expiry. I'll see you. Bye bye.